and many similar challenges like urbanization. We are pleased with the progress on the commitments from the summit last September. This includes cooperation in the railways, where we have identified specific projects, and the two Chinese industrial parks in Gujarat and Maharashtra. I am pleased that the two chief ministers are here with me. Both leaders were very supportive about increased Chinese participation in our Make in India mission and infrastructure sector. In Shanghai tomorrow, we will see our 20 venture in the private sector take concrete shape. President Xi and Premier Li were very receptive to the specific concerns I had raised on our growing trade deficit. We look forward to early impact on the ground. We have agreed to create a high-level task force to develop a strategic roadmap to expand economic relations. It will cover a broad range of areas, including infrastructure, IT, pharma, agriculture, and manufacturing. An area of high priority for us is people-to-people contacts. Indians and Chinese do not know each other well, much less understand each other. We have decided to take the relationship out of the narrow confine of governments in the national capitals to states, cities, and our people. For the first time, India had launched a state and provincial leaders forum with any country. This is consistent with my firm commitment to cooperative federalism in India. This is the year of India in China. The next one will be the year of China in India. This will expand tourism between our two countries. We are establishing a center for Gandhian and Indian studies in Shanghai, a yoga college in Kunming, and bilateral think tanks forum. The Nathula route for Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar will become operational in June. I want to thank China for that. Our decision to open a consulates in Chengdu and Chennai reflects growing mutual confidence and shared commitment to expand our relationship. These steps will help make our relations regional outcome of international climate change negotiations. We are both trying to strengthen regional connectivity. Terrorism is shared threat. Instability in West Asia matters to both of us. Peace and progress in Afghanistan benefits us both. I am confident that our international partnership will deepen. Today, we have signed
over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. This shows the depth and maturity of our relationship and the positive direction of our partnership. This has been a very productive and positive visit. I look forward to working with President Xi and Premier Li. I have welcomed President Xi's proposal to hold regular summits to realize our vision for the relationship. I have also invited Premier Li to visit India at an early date. I look forward to Shanghai tomorrow. Thank you. Thank you very much. 公前记者活动到此结束，谢谢两位总理，谢谢大家。कई समझौते हुए हैं, कई दिशा में बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारी जो पूरी विजिट है वो बहुत ही प्रोडक्टिव और पॉजिटिव है। कम से कम कई समझौतों के साथ सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए दोनों देश कुछ क्षेत्रों में न सिर्फ एक साथ खड़े हो रहे हैं बल्कि एक दूसरे के साथ अब भरोसा और विश्वास जताने की कोशिश भी की जा रही है। हमें लगता है कि अब हम इस पे हमारा जो पूरा पैनल मौजूद है, जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें कई बात थी। सीमा पर बातचीत हुई, वहाँ शांति रहनी चाहिए, सकारात्मक और दोस्ती की स्थिति में दोनों देश आगे बढ़ें। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर बातचीत हुई, वीज़ा पॉलिसी को लेकर बातचीत हुई, नदियों को लेकर सहयोग हो उसको लेकर बातचीत हुई, टूरिज्म के क्षेत्र में बात हुई, नाथुला रोड जो खुल जाएगा, जो कि कैलाश मानसरोवर का है, वो जून में खुल जाएगा, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। कॉन्सुलेट खोला जाएगा भारत में चेन्नई में, उस पर भी सहमति बन गई है। व्यापार घाटे को लेकर भी चिंता जताई गई है। कुल 20 समझौते किए गए हैं। शंघाई में उसको एक मूर्त रूप दिया जा सकेगा, जो कि कल वहाँ पर कई क्षेत्रों और कई कॉरपोरेट और बाकी जिस भी रूप में वहाँ पर आर्थिक समझौते उस दिशा में कंक्रीट तरीके से शंघाई में बातचीत के बाद चीज़ें निकल कर आएंगी। चाइनीज़ पार्क, दोनों गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साथ हैं, उनकी मौजूदगी है, वहाँ पर खोले जाएंगे। किस रूप में इस पूरे समझौते को देखा जाए? संबित, मुझे लगता है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव समझौता है और तमाम विषयों को छुआ गया है। मोदी जी का एक ट्वीट है, I stressed need to China to reconsider its approach to some issues that hold us back from realizing full potential of our partnership. कि कुछ विषयों को रिकंसिडर चाइना को करना चाहिए ताकि दोनों देश बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। मुझे लगता है ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट भी है और बहुत विषयों को, जिन विषयों पर शायद डिस्कशन नहीं होता था उन विषयों को छुआ गया है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ भी होनी चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट, जो कि मोदी जी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, एक स्वप्न रहा है, उसको उन्होंने चाइना के ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल सिक्योरिटी के साथ जोड़ा है और एक MOU इसको भी लेके साइन हुई है। 3 शहरों का तो सिस्टर कंसर्न शहर वहाँ देखे गए हैं, चेन्नई, औरंगाबाद और हैदराबाद। एक पूरे स्टेट का, कर्नाटक का एक पूरा स्टेट सिस्टर कंसर्न के रूप में शिंचाओ देखा गया है। पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव मान रहे हैं आप? बहुत पॉजिटिव और भीम प्रोडक्टिव साहब है। देखिए, जो मैंने पहले कहा कि जो समझौते हुए हैं उस पर काफ़ी दिन पहले से बातचीत चल रही होगी और वही सब सामने आया है। हमारा कहना ये है कि जो स्टेटमेंट आया है उसके अंदर जो हमारे अहम मुद्दे हैं, जो बाउंड्री वाला मुद्दा है, जो पाकिस्तान का मुद्दा है और उस तरह के जो दूसरे मुद्दे हैं, जो रियली हमारा एक तरह से किसी भी तरह का समझौता कभी नहीं होता है। ये ज़रूर है कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते मजबूत करने की बात कही गई है, LAC का सम्मान करने की बात कही गई है, लेकिन LAC पर 18 बार मीटिंग हो चुकी है, उसका कोई आज तक नतीजा नहीं आया। अभी तक आपस में जो नक्शे हैं वो भी आदान प्रदान उसका नहीं हुआ है। बातचीत हुई है, ऐसे आप पॉजिटिव मान रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई बातचीत इस पर हुई है तो मैं समझता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट को रखकर सामने मोदी जी ने यकीनन बात की होगी, लेकिन वहां से क्या इसका रिस्पांस बाद में हमको मिलेगा ये देखने वाला। इंटरनेशनल मीडिया किस रूप में वहां पर देख रहा है? अंजना, आप वहीं पर मौजूद हैं, किस रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस पूरे विजिट को वहां पर मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है, किस रूप में ले रहा है?
ज़बरदस्त तरीके से प्रसून, आज आप कह सकते हैं कि मोदी मॉर्निंग यहाँ पर गुड मॉर्निंग के बजाय मोदी मॉर्निंग, जितने भी अखबार थे और ग्लोबल टाइम्स में तो बाकायदा निक्सन का जो प्रैग्मेटिज्म था एक वक्त का, उससे तुलना की गई है और वही अंदाज बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तमाम अखबारों पर पहले पन्ने पर मोदी की तस्वीरें हैं और ग्लोबल टाइम्स ने तो खास तौर पर जो टेराकोटा वॉरियर्स के साथ कल मौजूद थे वो उस अखबार की तस्वीर को सामने रखा है। तो कुल मिलाकर यहाँ मीडिया में ज़बरदस्त अलग अलग एंगल से ज़रूर बातचीत हो रही है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में भी बड़े सकारात्मक रूप से पेश किया गया है और बाकायदा उसमें लिखा गया है कि वेस्ट यानी पश्चिम हमेशा से चाहा है कि ये एशिया के दो जो बड़ी शक्तियां हैं, उभरती हुई आर्थिक महाशक्तियां, उनमें उस तरह की दोस्ती नहीं बने, लेकिन हिंदुस्तान और चीन उस तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि बहुत सारी सरहदों पर दिक्कत है, बहुत सारी, लेकिन मैं प्रसून एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी बोला है उस पर एक बार वापस आना चाहती हूँ, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और इस जो तमाम कोऑपरेशन की डील्स हुई हैं, 20 एग्रीमेंट का उन्होंने जिक्र किया, कुल 10 US बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने नाम लिया कि हमने कहा है कि जो अभी एब्सर्डिटी या फिर जो भी एक कंफ्यूजन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उस पर जल्द से जल्द सहमति बहुत जरूरी है। तो हिंदुस्तान के मद्देनजर ये जो एक शक हमेशा चीन को लेकर रहता है, उसको उन्होंने फोकस पॉइंट बनाया, सबसे पहले अपनी बात कही, उसके बाद तमाम मुद्दों पर आए हैं। और इसी के साथ जब उन्होंने स्टेट और प्रोविंशियल फोरम को भी, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर उनकी कोशिश ये है कि सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं, जो राज्य हैं, और इसीलिए स्टेट प्रोविंसेस फोरम में अभी वो बोलेंगे भी, वहां पर भी जाना है उन्हें, दोनों ही देशों के स्टेट एंड प्रोविंशियल फोरम को बनाकर बाकायदा बातचीत आगे ले जाई जा रही है। नीति आयोग थिंक टैंक को कैसे आप जोड़े दोनों देशों में, इसका जिक्र हो रहा है। और जो सपना उनका है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट का, उसमें महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया में बनना है, उसमें वो कैसे चीन योगदान कर सकता है। यहाँ पर मीडिया में जबरदस्त, अखबारों में कम से कम वो छाए रहे प्रसून। हालांकि उससे एक दिन पहले तमाम आशंकाएं अखबारों में एडिटोरियल्स के जरिए जाहिर की जा रही थी, लेकिन कल के उनके उस भावुक तरीके से यहाँ की चीनी जनता से जुड़ने की कोशिश ऐतिहासिक धरोहर को बिसात बनाकर रंग लाती दिखी, और शायद इसीलिए उनका जो करिश्मा है वो अखबारों में तस्वीरों के साथ दिखा है। प्रसून। कमल में चनाय साहब, एक सवाल, $10 बिलियन का जिक्र हमारे रिपोर्टर ने किया है, इसको हमारे यहाँ तो 20 और 23 बिलियन लगातार छप रहा था, लेकिन हमारा सवाल एक दूसरा है कि महाराष्ट्र और गुजरात में चाइनीज़ पार्क का जिक्र है, दोनों के सीएम गए। दूसरी तरफ जो नीति आयोग है और स्किल डेवलपमेंट है, ये गवर्नमेंट का अपना, मोदी जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर बने उस दिन से इस इशू को लेकर चल रहे हैं, और भारत के भीतर जो संदेह है उसकी लकीर, जो सीमा का सवाल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सवाल है, ब्रह्मपुत्रा का सवाल है, स्टेपल वीज़ा का सवाल है, इस चीज़ों पर बात हुई। क्या एक पर्सपेक्टिव आप देख पा रहे हैं, कोई चेंज का पर्सपेक्टिव देख पा रहे हैं, या आप मानकर चल रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, चाहे वह राजीव गांधी के दौर से अभी तक के प्रोसेस में आई है, वो एक प्रोसेस है, ऑन प्रोसेस है चीज़ें, चाइना भी बदल रहा है, भारत भी चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस है क्या? पहली बात यह है कि जब जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगा तो हमें बेहतर पता चलेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री बोले हैं, लगते हैं वो इसको एक प्रोसेस मांग रहे हैं जिसको आगे ले जाना है, मगर उस प्रोसेस में कुछ अड़चन भी है। यदि हमारे यहाँ 23 या जितने बिलियन डॉलर्स की पूंजी लगाया जाए मेक इन इंडिया के लिए, कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुरुस्त हो जाए, तो फिर देखना होगा कि क्या हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई मुकाबला कर सकता है। और यदि नहीं पूरे तरह से कर सकता है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कुछ पिछड़ी हुई है, उसके कमज़ोरी के कारण जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ेगा और वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा। तो जो डिटेल्स हैं, कहाँ आ रहे हैं ये पैसे, कहाँ जा रहे हैं, उन पे क्या शर्तें हैं, ये डिटेल्स बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। मैं अंजना को सुन रहा था बड़े ध्यान से, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, क्योंकि वो वहाँ पे है, वो स्पंदन को महसूस कर सकती हैं, हम दूर हैं काफ़ी, कि कहीं ना कहीं हर अखबार में मोदी जी को फ्रंट पे रखना और एक निक्सन से कंपैरिजन भी। तो मैं एक लाइन कहना चाहता था, फाइनली एन इंडियन लीडर आफ्टर लॉन्ग हैज़ अराइव्ड इन चाइना। आप देखिए, नेहरू जी के बाद, नेहरू जी की एक्सेप्टेंस, उसके बाद आइस ब्रेक हुआ 1988 में, तब तक कोई नहीं गया था, फिर राजीव जी गए,
वो आइस ब्रेकिंग के लिए यूज़ हुआ। 2003 में एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी जून के महीने में गए और पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, हमारे ऊपर बड़ा दबाव था और एक मैत्रीपूर्ण वातावरण बना और पहली बार 62 के बाद नेगोशिएशंस हुए जिसमें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर के ऊपर वो तैनात किए गए। उसके बाद मनमोहन जी 2008 और अब मुझे लगता है फाइनली आफ्टर नेहरू अ लीडर हैज़ अराइव्ड इन चाइना, जिसको एक्सेप्टेंस मिला, जिसको स्पेस मिला है और एक नया इतिहास आज चाइना के साथ मैं कहूँगा 62 के बाद ये शुरू हुआ है। क्या सही है? कुछ हद तक सही है, क्योंकि देखिए जब तक हमें मालूम ना हो कि पिछले मर्तबा जब मनमोहन सिंह जाते थे तो क्या होता था, मुझे नहीं ज्ञान है। हमारा जो मीडिया है जिस तादाद से आजकल जा रहा है और जिस जोश से जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपने एयरक्राफ्ट में किसी को नहीं लेके जाते, इसकी वजह से हमारा मीडिया व्यंजन चाहता है और ये पहले कभी नहीं हुआ। तो हमको ये नहीं मालूम है कि जब मनमोहन सिंह गए थे कि फ्रंट पेज पे मनमोहन सिंह का नाम निकला था या नहीं निकला था। मैं इसमें बताऊं नहीं, एक मिनट मुझे मैं बात खत्म। और आपने दूसरी बात ट्वीट की कह दी। अब ये ट्वीट मेरे लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ अनखुश लगते हैं, नाखुश लगते हैं प्रधानमंत्री कि जो बातें होनी चाहिए थी, चीन को रिकंसिडर करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? तात्पर्य यही है कि थोड़े अनखुश, मतलब एक सेंटेंस निक्सन के बारे में जो जिक्र हुआ है, निक्सन को प्रेसिडेंसी से रिजाइन करना पड़ा। वो पहले प्रेसिडेंट थे जो रॉन्ग एथिक्स, रॉन्ग टैक्टिक्स के लिए उनको रिजाइन करना पड़ा। देखिए मैं एक बात कहना सर, एक सेकंड ऐड कर, एक मिनट पर्सपेक्टिव खत्म हो जाएगा, उसका जरूर आप कह दीजिएगा। मेरी पर्सपेक्टिव ये कि मीडिया को मोदी जी लेके नहीं जा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट पे, फिर भी मीडिया वेंजेंस के साथ जारी है। मैं इसको एग्री नहीं करता सर। देखिए इफ यू हैव द एबिलिटी, मीडिया आपको जरूर रखेगी, फ्रंट पेज में रखेगी। मैं यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूँ। रख सकती है। तो आई बिलीव मिस्टर मोदी हैज बॉट फॉर हिमसेल्फ द सेंटर पेज। सबके रिएक्शंस लेते चलें। जी बताएं। समित ने कहा कि नेहरू के बाद 1962 का भी हवाला दिया कि पहली बार कोई लीडर लगा कि चाइना पहुंचा है। ये पब्लिसिटी का कमाल है कि लोगों को लग रहा है कि कोई लीडर पहुंचा है। इससे पहले भी लीडर जाते थे, लेकिन वो इतने उत्सुक नहीं होते थे अपनी पब्लिसिटी करवाएं या करें। लेकिन यहाँ देखिए, मैं प्रधानमंत्री सुनिए पर्सपेक्टिव को थोड़ा समझ लीजिए। पर्सपेक्टिव ही बात कर रहा हूं। दुनिया बदल रही है। हमारा ये तरीका है जब हम गुफ्तगू करते हैं, प्रधानमंत्री बाहर होते हैं, और पिछली बार भी इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई जर्मनी के अंदर कि पहले प्रधानमंत्री बोले, आज संबित पात्रा बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बाहर होता है तो हम इस बात को अवॉइड करते हैं कि उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट दिया जाए। लेकिन और प्रधानमंत्री ने पिछली बार ऐसा किया और अपोजिशन को निशाना बनाया, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने नहीं, संबित पात्रा ने एक बड़े चैनल के ऊपर बाकी तमाम प्राइम मिनिस्टर्स को निशाना बनाया। ये तरीका गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ये मैंने आपको बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आरएसएस के यहाँ सिन्हा साहब बैठे हैं, इन्होंने कल कहा कि चाइना हमारा दुश्मन है। जरा मुझे बताइए आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? 24 मंसूबे हुए हैं, 24 जो मुआहदे हुए हैं, उस एक वो सामने है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट अभी आपने पढ़कर सुनाया, और आरएसएस कह रहा है कि हमारा दुश्मन है बीजेपी, चाइना। देखिए मीम साहब, आप तो डिप्लोमेट रह चुके, मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री वहाँ बयान दे रहे हो, हम लोग की भी बहुत तफसील से इस पे डिस्कशन हमें लगता है रिएक्शन पहले लेते आप जरूर कंपेयर करें, हम लोग अपने शालीनता के साथ कंपेयर करें। जॉइंट स्टेटमेंट। एक मिनट बात सुनिए, किसिंजर की डायलॉग माओ के साथ हो रही थी, उन्होंने अपने किताब में लिखा है, तो माओ उनको कहने लगे जो राइट विंग लीडर्स हैं वो मुझे बड़े पसंद हैं। उन्होंने डगॉल का नाम लिया, थैचर का नाम लिया, निक्सन से तो बात ही कर रहे थे। वो कहते क्यों, आपको क्यों पसंद है? इससे नहीं, उनके साथ हमारी बातचीत सही होती है। देखिए, जो राइट विंग लीडर इतनी मेजॉरिटी के साथ हिंदुस्तानी ये मान जो दे रहे हैं वो हिंदुस्तान के लोगों को दे रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट एक प्राइम मिनिस्टर को दिया है। वो चीनी आपको दाने डालेंगे। चाइना यूजेस पॉम्प एंड सेरेमनी टू फ्लैटर यू एंड ब्रिंग यू टू देयर लाइन ऑफ थिंकिंग, विच इज कि आप देखिए दक्षिण एशिया तक रहिए, इससे आगे मत बढ़िए, अमेरिका का हाथ मत पकड़ो, जापान के साथ मत जाओ,
हमारे साथ चलोगे तो ठीक है, हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, आपको कुछ दे देंगे इन्वेस्टमेंट। 10-20 बिलियन डॉलर है क्या जिनके पास 4 ट्रिलियन है, 1% भी ना हुआ उसका, 0.5, वो कौन से ग्रांट देने जा रहे हैं आपको? यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे, आपकी इंडस्ट्री को हॉलो आउट करेंगे। जैसे इन्होंने कहा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है, आप बांट कर इन्वेस्टमेंट लेंगे, अकेला चीन पे थोड़ी निर्भर हो सकते हैं। जापान ने उससे ज़्यादा कमिट किया है। रेलवे जो आज ये टेक्नोलॉजी आपको दे रहे हैं, चीन से जापान से चोरी करके टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है। इनका सेफ्टी रिकॉर्ड हमें नहीं पता, एक्सीडेंट होता है, कभी उसका ऑडिट हुआ है कि टेक्नोलॉजी, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में। दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट in the relationship between India and China. Today, we are launching a new vehicle for advancing cooperation between our two countries. In times to come, this will become one of the most important instruments for deepening our economic partnership and contact between our people. As someone who has been Chief Minister for 13 years and Prime Minister for 1, this forum has a special place in my heart. But it is not just my sentiments that lead me to give such importance to this new institution. It comes from the series of conviction born from my experience that states have a vital role to play in the national development. This is especially true for large and populous countries with a high degree of geographical, social, and economic diversity. It becomes even more relevant when the constitutional and political systems are in federal structure. These attributes exist in both India and China, the world's two most populous nations. In India's constitution, state governments have predominant role in economic and social development. The central government creates the macroeconomic environment. It can set the broad social and economic agenda and directions for the nation. It can launch development policies and schemes. It can manage resources. But in the end, the state governments have an important role in their implementation. But as I saw in my own experience, state governments can take innumerable initiatives for the development of the states. That is the level of autonomy and responsibility that they enjoy under our Constitution. In the same national environment, states are performing at different levels. For business investors too, whether they are Indian or foreign, their journey may begin in Delhi, but their success ultimately depends on state capitals. Many of the critical requirements for success, infrastructure, land utilities, skilled human resources, and many approvals ultimately depend on the state governments. But for me, the involvement of states in our national efforts is not just because of their constitutional and legal responsibilities.
It is also stems from a basic management principle. The chances of successes are higher when we create a sense of participation for everyone. When we give everyone a stake in success. That is why I speak of Team India. That is why I believe that the foundation for India's development will not be the single pillar of the central government, but 30 pillars comprising the central government and all our states. It follows from the simple logic of science that this foundation will be stronger and more stable. It can support a much taller structure of development. That is why I speak of cooperative federalism when the center and the states are partners. I also speak of cooperative and competitive federalism in which states compete with each other to attract investments and jobs. We have moved quickly in the past year to give shape to this vision. When we replaced the old Planning Commission with the institution called Niti Aayog, we gave a formal place and role for state governments in an institution of this nature for the first time in India. We have radically increased the amount of resources that the central government must transfer to the state governments. And when we began to raise large revenues from the auction of our coal, it also filled the coffers of the states where the mines are located. I am asking my ministers to move conferences out of Delhi to state capitals and other cities so that they do get the benefits that come from hosting such events. More than anything else, we deal with the state governments in a spirit of partnership and with sensitivity to their concerns. And in doing so, we do not look at the symbol of the political party that is in power in the state. Which is why, when I invited state governments to participate in this event, they consider the linkages of the states with China, but also broader political representation. Every nation needs strong international partnerships for its progress. The linkage has deepened in an integrated world. As international partnership in trade, investments, innovation, technology, tourism, education, skills, and health grow, state governments have a stake in them and responsibility for their success. I have found both through outbound and inbound state delegations that state level infrastructure can be often more focused and productive. A number of decisions can be taken quickly by the state governments. These interactions also make the state governments more sensitive and aware of the international dynamics and requirements. Therefore, I attach great significance to this forum. It is the first that India has with any country, and it is appropriate that it has started with China. We are two of the world's largest economies,
and among its fastest growing major economies. We have enormous economic synergies. We also face similar challenges. We have some similar experiences. We have both seen differences in the pace of development.